Good morning, students. Today we are going to discuss about the practical where the identification of functional group. This practical is compulsory for all the students. जहाँ पे 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा उसमें 2 मार्क्स का फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन आता ही है. अभी इसमें सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए रहेंगे विच विल बी अननोन फॉर यू एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई देम वेरी केयरफुली. तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो कार्बोक्सिलिक में आपके पास 2 सब्सटेंस हो सकते हैं. इधर एसिटिक एसिड विल बी देयर और अदरवाइज ऑक्सैलिक एसिड विल बी देयर. अभी ये सब्सटेंसेस आपको टेस्ट ट्यूब में अननोन के तौर पे दिए रहेंगे एग्जामिनर के टाइम, and that time you have to dissolve it and you have to identify whether this group is having the oxalic acid or not, or carboxylic acid or not. ये ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट वन, suppose for example this sample is given of acetic acid, but as a student I don't know the sample, so what I will do, carboxylic test के लिए क्या बोला है, substance which is already given in my test tube plus उसमें 10% सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है, बाइकार्बोनेट. एंड once you added the sodium carbonate, bicarbonate, you will get the brick effervescence. You can see the differences. ये effervescence क्या है, यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन में क्या दिया है, the substance soluble with brisk effervescence of CO2 gas. That means the given sample contain carboxylic acid. Clear this much? ये एक फर्स्ट टेस्ट हो गया. दूसरा टेस्ट सिमिलरली, अगर आपको सैंपल में दिया रहेगा ऑक्सैलिक एसिड का पाउडर, दैट इज सॉलिड पाउडर. In that solid powder, when you add the same constituent, again you can get the brisk effervescence. Okay? Again you can get the effervescence, that is indicating that carboxylic group is present. Sample, phenolic sample का एक डिटेक्शन आपको याद रखना है कि जो सैंपल आपको दिया रहेगा, it will be phenolic crystal. डिपेंड है अवेलेबिलिटी क्या है तुम्हारे कॉलेज में, उसके हिसाब से आपको यूज करना है. फिनोलिक क्रिस्टल का कलर लाइट पिंक रहता है. जैसे उसमें वाटर ऐड करते हो आप, वो डिजोल्व होने की कैपेसिटी में चला जाता है. सी यू कैन सी द 2 लेयर्स, यू कैन सी यू विल गेट द 2 लेयर, इमिसिबल लेयर्स बोलते हैं इसको. जो ऊपर वाला कंटेंट है वो फिनोलिक कंटेंट है. इन दैट यू हैव टू ऐड द फेरिक क्लोराइड विच इज अ इंडिकेटर. एंड नाउ when the solution will turn to blue color, this indicate that, यहाँ पे देखो फिनोलिक टेस्ट में जब सब्सटेंस ऐड करता है वाटर में तो न्यूट्रलाइज लेयर मिलता है, फिर न्यूट्रल Fe3Cl3 ऐड करना है एंड आपको ब्लू कलरेशन मिल जाता है, ब्लू कलर. द फिनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट. डिपेंड है कौन सा फिनॉल यूज करे उसके ऊपर डिपेंड है. अभी हमने यहाँ पे क्रिस्टल फिनॉल यूज किया था तो हमने ब्लू कलर का इंडिकेशन आ गया. The third functional group detection is aldehydes. अभी aldehydes, you know that aldehydes is present in all the carbohydrates. In this you can take the sample of sugar compound, sugar powder, any starch powder भी ऐड करोगे तो भी आपके रिजल्ट्स आने वाले इसमें. तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको शुगर का सिरप दिया, एग्जाम्पल फॉर aldehyde detection you have given the sugar syrup. In this what it is given, aldehyde, that is substance plus you have to add 2 or 3 drops of Schiff's reagent. Now you know that already the Schiff's reagent is in pink color. तो आपका सैंपल भी पिंक होना चाहिए तो जाके aldehyde वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है. और along with that you are supposed to write the formula also. You can see once you add the Schiff reagent, you can see the pink color appearance here. इसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो कंटेंट है aldehyde के ग्रुप का, that is COH, that is aldehyde is separated from the component. Now the next functional group which is present for your examination, that is ketonic group. अभी ketonic group को आपको substance कैसे आइडेंटिफाई करना है, with the help of a smell. क्योंकि ketonic को typical smell रहता है, जिससे कि हर बार हम एसीटोन का सैंपल रखते हैं in order to get the results very quickly. So अगर आपके टीचर ने आपको unknown सैंपल करके दिया रहेगा जिस क्वांटिटी में, तो you have to test it. With the help of a strong smell, you can identify that this is a ketonic sample. In this ketonic sample, you have to add NaOH. First आपको NaOH ऐड करना है. जैसे आप NaOH को ऐड करते हो, so you will get the dissolution messy layer. You can see the layer gets separated क्योंकि ketonic group में जो COO double bond O formula है वो liberate हो जाएगा. And then you have to add the sodium nitroprusside. Now this is your coordinated compound which is going to separate the ketonic formula and you will get wine red color. You can see once you added the sodium nitroprusside,
you will get deep wine red color. That is the indication that ketonic group is present in your sample. राइटिंग पैटर्न फॉर कंपोनेंट्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. देखो फंक्शनल ग्रुप सिर्फ 2 मार्क के लिए आता है, तो जरूरी है उसको लिखना प्रॉपरली आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एकदम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस दिया रहेगा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद वो डिजोल्व होता रहेगा प्रॉपरली, तो आपको उसमें ये देखना है कि सब्सटेंस लिखते वक्त उसमें ऑब्जर्वेशन देना है, इन्फरेंस देना है, और फिर रिजल्ट में उसका नाम और उसका फंक्शनल फॉर्मूला इज वेरी वेरी कंपल्सरी. दिस इज वेरी क्लियर टू यू. अगर आपका फर्स्ट इसमें आंसर आ जाता है तो इतना स्टेप ओके. अगर आपको टीचर ने दूसरा कंपाउंड दिया रहेगा, फिनोलिक कंटेंट दिया रहेगा, तो पहले वाला टेस्ट आपको लिखकर बताना है कि एब्सेंट है, और दूसरा वाला टेस्ट आपको प्रेजेंट करके बताना है कि येट इट इज प्रेजेंट. सिमिलरली इफ द कीटोनिक सैंपल अल्डिहाइड सैंपल इज गिवन टू यू, तो आपके पहले स्टार्टिंग के दोनों जो टेस्ट थे, जो एब्सेंट है वो भी लिखने हैं, फिर जो प्रेजेंट आ रहा है वो प्रेजेंट करना है, एंड देन उसका फॉर्मूला देना है. अगर आप फॉर्मूला नहीं देते हो, ग्रुप का नाम ही सिर्फ लिखते हो, तो आपके 1 मार्क वहां पे डिडक्ट हो जाते हैं. तो फॉर्मूला इज कंपल्सरी. So thank you so much all of you.